You had exams. Yes, sir. They got over yesterday. Sure. Yes, sir. So did you get time to watch the lectures? So I watched the first one today. I was watching at the half, but time ho gaya. I only watched the. Actually, I missed 4 classes, so I have to watch 4 lectures. I watched the first one and half of it. तो कैसे कंप्लीट करेंगे आप? So I have to watch them quickly and write down the notes. I didn't finish the notes only from the first lecture. I wrote. Okay, so I would suggest that you watch the lecture right now, I would say. Now? Yep, because maybe you can stay for a while. ठीक है, आप देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? And अगर आप नहीं समझ में, most probably if you have not done this chapter in your school, then आपको शायद समझ में ना आए. So I would suggest that that point you should leave and watch the lectures. That would be like more better for you. So we just started redox today. अच्छा. Yes. चलिए ठीक है. I will start, but आपको अगर समझ में ना आए ना, then you will just let me know and आप जाके lectures देख सकते हैं, ठीक है? आपको मेरे तरफ से allowed है. आएंगे ना हम? Okay, sir. Okay, sir. ठीक. So in the last lecture we have seen we ended up with substituents, right? अच्छा guys, हाँ तो क्या हो जाता है यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा? आमना, ईजान and Rishita, please turn your cameras on. Thank you. And कल हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी, राइट? काउंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह. ठीक है. आमना, you are comfortable with the previous parts? Yes, Amna. Naming of alkane, alkyl. ये तो हम आज करेंगे, नेमिंग ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट वो हम करेंगे. बट द प्रीवियस पार्ट जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, पेरेंट है, ये सारा आप क्लियर है? जी. चलिए ठीक है. सो राइट डाउन क्वेश्चंस. अब देखिए सवाल ही होना है, ठीक है ना इल्हाम? दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि आप देख लीजिए. क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, पेरेंट एंड सब्सिक्वेंट इन फॉलोइंग. इन फॉलोइंग, ठीक है. राइट द फर्स्ट वन. Second one. ठीक है, try these three. हाँ इल्हाम, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? So can I watch the previous lectures? हाँ हाँ ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है ना? हमको पता कि नहीं, इट्स लाइक वेरी वेरी मिडिल, है ना?
I have added a fourth question. Okay, तो fourth वाला भी देख लीजिए जरा. I have added a fourth one. Amna, are you getting stuck? If you let me know, है ना? If you are getting stuck, you will let me know. Okay. Okay, sir. आमना, Yes, sir. आप अनसैचुरेशन वगैरह कहीं कहीं पे मिस कर दे रहे हैं. थोड़ा उसको देखिए. Which one, sir? लास्ट वन. देखिए आपने सेकंड वाले में फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा है, थर्ड वाले में फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा है, फोर्थ में आपने अनसैचुरेशन नहीं लिखा है. Few more minutes, Rishita. Few more minutes.
You understood what I'm trying to say, Amna? Yes, sir. Okay. ठीक है, उसको ठीक कीजिए. फंक्शनल ग्रुप क्या होगा फिर? Rishita, are you getting stuck somewhere? Just in the third one, sir. Third one. क्या दिक्कत आ रही है? I don't know if I should leave out the Sorry? carbon atom. I don't know if I should leave out the carbon atom that is outside the cyclopentane thing. हाँ, उसको छोड़ देना ना. I said ना, the main chain can either be a ring or it can be जो आपका parent होगा, it can either be a ring or a chain. So obviously it will be a ring because ring के ही अंदर unsaturation है. Got it, Rishita? Yes, sir. Two more minutes, guys. Please send me the answer. Okay, 2 more minutes. Sir, should I send again? हाँ, आपने अगर ठीक कर लिया तो फिर से भेजिए. If you have corrected a few things, please send it again. हाँ, ठीक है, वेरी गुड. आप ठीक है. थोड़ा फोर्थ वाले का आपका सब्सटेंस सही नहीं है, बट मोस्टली आपका सब्सटेंस सही है ना. एंड कुछ अगर मेरे से मिस हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा. ऋषिता, सेंड योर आंसर. आपका अभी तक नहीं आया. एक एसिड पेंट, ठीक है जी. सेकेंड वाला, हाँ, फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं होता तो ई लिखते हैं ना ऋषिता. वी राइट इट ई ना, अगर कुछ नहीं होता तो. Yes, sir. हाँ, ठीक है. अनसैचुरेशन ई एन, फिर 1 2 3 4 5. नहीं नहीं नहीं, सेकेंड वाले में आपका पेरेंट सही नहीं है. सबसे चलिए, ठीक है. लेट अस सी. For this one, most of you guys are correct. Functional group is going to be COOH. इसको हम लोग ओइक एसिड लिखेंगे. और अनसैचुरेशन की बात आए तो it is going to be nothing. That is why it will be AN. And when we talk about the parent, so our parent, oh, I will just change the background. Please brace yourself, okay?
It's going to be completely white. Anji. This is max, right? Anji, this is max, right? एक दो तीन चार पांच. So this is 5 carbon atoms. So this will be pent. Right, this 5 carbon atom. Now what is remaining? The only thing that is remaining is this methyl group, right? So we'll write this as substituent, which is methyl. Now let us see this one. So here the functional group is equal to E. Unsaturation will be equal to En, and then the parent will be equal to what? इसको पहले ऐसे करना पड़ेगा. 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है? This will be pent. And after this will be your substituent is what? Methyl. आपने शायद सवाल गलत लिखा था, क्या किया था आपने? देखते हैं एक सेकंड. I thought it was a question wrong. हाँ, लेकिन आपका वही, हमने क्वेश्चन देख के आपको बोला था कि सही नहीं है. फिर भी आपने ना जो पेरेंट को चूज किया वो गलत चूज किया. आप अपने सवाल के हिसाब से भी आपने गलत चूज किया हुआ है. So what should be the correct answer according to my question? अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आप बताएं. टर्मिनल टू टर्मिनल होना चाहिए, तो आपने बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे किया हुआ. टर्मिनल से टर्मिनल होना चाहिए, राइट? ठीक है. बट आप एक बात बताओ, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर 1, 2, 3, 4, अब बताइए आई शुड गो अप और राइट साइड. Up वाई अप? because it's the terminal. राइट में भी आपको टर्मिनल मिलेगा ना भाई. देखिए ऐसा नहीं करते हैं. टर्मिनल तो आपको राइट साइड में मिलेगा. एट द एंड इट विल यू विल गेट द टर्मिनल, राइट? यस और नो ऋषिता? Yes, sir. तो हम लोग क्या देखते हैं ऊपर और साइड में, राइट साइड में? इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप एनीवेयर? No. फंक्शनल ग्रुप है कहीं? नहीं. अनसैचुरेशन है कहीं? En. नहीं नहीं, अनसैचुरेशन इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद. No, no. नहीं नहीं, वी हैव वी आर स्टक हियर ना. इसके बाद तो कुछ नहीं है. अच्छा, इस तो हम लोग क्या देखेंगे? अब ये सारी चीजें नहीं है, देन वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट? द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ना. Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. So this will become your substituent. Now, please see this one. Functional group is E. Unsaturation is En. Parent is this whole thing. है ना? क्या हो जाएगा ये? This is going to be 5 carbon and ring. So cyclopent. And when I talk about this, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे. ठीक है. Now this is going to be ethyl. है ना? ये this is for amna. Functional group will be E. Unsaturation, sorry, functional group will be all. Unsaturation will be En. And the parent carbon chain will be 1, 2, 3, 4, 5. That is pent. And the substituent will be ethyl, not methyl.
Please correct it and raise your hand once you're done. ना आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया Yes, sir. अबाउट दी, आपको आइडिया लग गया ना? ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना? थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोगों ने कर लिया था। अब आप लोग लिखिए नेमिंग ऑफ नॉन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। 4th नंबर, थोड़ा सा अजीब एग्जांपल है फिर भी। इसको ट्राई करें जरा। Someone else has sent me the answers. सब्सिक्वेंट में लिखना है, आई थिंक दिस इज खदीजा ना। You also have to write the subsequent, क्योंकि पेरेंट तक नहीं सब्सिक्वेंट तक लिखना है आपको। इसका ट्राई करते हैं आप लोग। हाँ, रिश्ता हुआ यार, आप लोग बड़ा टाइम लगा दे रहे यार एक सवाल में। टेल मी, हाँ हाँ, बाकी लोग बताएं व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप हियर, टेल मी गाइस, फंक्शनल ग्रुप क्या है? टर्न योर माइक ऑन एंड टेल मी, छोड़िए सवाल, फंक्शनल ग्रुप क्या है? हाँ सॉरी, Alcohol, OL. OH है ना, OH है तो इसके लिए क्या लिखते हैं? OL। व्हाट अबाउट द अनसैचुरेशन? Nothing, AN. नथिंग, तो इट विल बी AN। व्हाट अबाउट द पेरेंट? नाउ प्लीज सी, दिस इज माय फंक्शनल ग्रुप, सो माय पेरेंट शुड कंटेन दिस कार्बन। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे एंड आई विल मूव टिल हियर ओनली, है ना? बस यहीं तक मूव करेंगे, आई विल एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप बिकॉज वी आर इन द चेन, और चेन से रिंग में हम लोग नहीं जा सकते। इफ यू आर चूजिंग अ पेरेंट चेन, इफ यू आर चूजिंग पेरेंट चेन एज अ सॉरी, इफ यू आर यूजिंग द पेरेंट कार्बन एज चेन, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वी आर गोइंग टू टेक द चेन ओनली, नॉट द रिंग। So parent carbon is going to be of 3 carbon atoms, that will be equal to prop, and then the remaining thing, this is what, this whole thing is subsequent, this whole thing is subsequent, which is a ring of 6 carbon। तो रिंग के लिए क्या आ जाएगा? साइक्लो आ जाएगा, और 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? हेक्स, एंड बिकॉज इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट वी विल राइट YL, साइक्लोहेक्साइड। क्या बात समझ में आ गई सबको? इस प्लीज? Yes, sir. अच्छा, आमना वगैरह ने भेजा है? अच्छा अच्छा, आपने भेजा है आमना। अच्छा, प्रॉप तक आपने भेजा। EN क्यों लिख दिया आपने? अनसैचुरेशन विल बी AN ना आमना, अनसैचुरेशन AN होगा ना। Sorry, sorry. हम्म, चलिए
अच्छा, दो एक ना नोट लिखिए जरा आप लोग। नंबर 1, if name of suffix, आपको एक name of suffix of functional group starts with a constant नहीं, consonant, ठीक है, consonant, then add e, to the end of unsaturation. क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेट अस सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस CN. सो फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास? इट इज नाइट्राइल. नाउ इफ यू सी, नाइट्राइल इज ओनली वन ऑफ दोस फंक्शनल ग्रुप जो N से स्टार्ट होता है, अदरवाइज ऑल द अदर फंक्शनल ग्रुप दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद आइदर एनी ऑफ द वॉवेल्स दे आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो अगर जो N से स्टार्ट हो रहा है, इट इज नाइट्राइल. दैट इज व्हाई फॉर अनसैचुरेशन व्हाट आई विल राइट, फॉर अनसैचुरेशन आई विल नॉट राइट AN गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा? AN विल बी रॉन्ग. आप AN नहीं लिख सकते, AN is going to be wrong. You will have to write ANE. You have to add this E at the end of unsaturation. बात समझ में आई सबको? yes or no, please tell me. ठीक है, पेरेंट वगैरह में आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. पेरेंट इज स्टिल गोइंग टू बी 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, राइट? पेरेंट इज स्टिल गोइंग टू बी हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4 कार्बन एटम्स. 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट. गॉट इट? yes or no, please tell me. देखिएगा जरा, if name of unsaturation, if name of unsaturation starts with a consonant, then add A to the end of parent, ठीक है। अच्छा, जब हम कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं ना, एक बात बताइए गाइस, H कॉन्सोनेंट है क्या? टेल मी गाइस, yes or no, इज H अ कॉन्सोनेंट और वॉवल? क्या है H? H कॉन्सोनेंट है या वॉवल है? अरे जोर से बोले, जोर से, आवाज ही नहीं आ रही है किसी की. इज इट अ कॉन्सोनेंट और वॉवल? Consonant. But what should I say? It is dash honor to meet you. डैश में क्या फिल होगा बताइए? ए होगा या एन होगा? ठीक है, तो इसको इट्स काइंड ऑफ अ स्यूडो वॉवेल, राइट? बोल सकते हैं इसको, है ना? इट इज नॉट अ वॉवेल बट समटाइम्स इट एक्ट्स लाइक अ वॉवेल. उसी तरह की कुछ चीज होती है. व्हेन यू हैव वाई, तो वाई को आप कॉन्सोनेंट नहीं मानेंगे, ठीक है? व्हेन यू आर राइटिंग वाई एन ना, प्लीज रिमेंबर गाइस, देखो यहाँ पे देखो यार, बाद में लिखना, देखो इधर. when you have yn as the unsaturation, so please remember ein, what we are saying, ein. So ein is a sound of a vowel, that is why yn आप y को आप यहाँ पे ना consonant नहीं मानेंगे, ठीक है? So what I am trying to say, for example, देखिए guys, देखिए उसके बाद लिखिएगा, अभी मत लिखिए. For example, if you have something like this 1 2 3 4 and here you have a double bond, and also here you are having a double bond, so functional group is nothing, so it will be E. Unsaturation is 2 double bond, so it will be di-en. So now you can see unsaturation is starting with what? It is starting with D. So for parent, rather than writing but, now but is going to be wrong. What I have to write? I have to write buta. I will add but to likhenge because there is 4 carbon atoms, and A because the unsaturation is starting with D. छोटी सी चीज है. I mean, this is just a rule. You cannot help yourself in this, है ना? You cannot have any tricks here. आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, because I think maybe because of some rules of English they have set this rule.
अब ये चीज आपको एनसीईआरटी में से लिखी हुई कहीं नहीं मिलेगी, बट यू कैन सी कहीं पे भी अगर नाइट्राइल यूज हो रहा है ना, तो वहां पे एन लिख रहे हैं, लेकिन ओइक एसिड यूज हो रहा है, ऑल यूज हो रहा है, तो वहां पे ए एन ही तक छोड़ दे रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग द कंप्लीट ए एन। ठीक है, सो बाय ऑब्जर्वेशन आई हैव गॉट दीज 2 पॉइंट्स, और बाकी ऐसे रूल्स में एग्जैक्टली कहीं आपको नहीं मिलेगा, बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। द नेम विल बी, नंबरिंग नहीं कर सकते हम अभी, बट इट इज ब्यूटाडाई, है ना, ब्यूटा होगा यहाँ पे। Let me know once you're done writing. Kirushita is done. What about others? चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट थिंग। प्लीज राइट यहाँ पे नेमिंग ऑफ नॉन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग ऑफ नॉन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। Now, when we talk about naming of non-alkyl substituent, तो यहाँ पे हम दो कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं, राइट? आई कैन डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल, let us suppose we have something like this. Here we have double bond O, और यहाँ पे आपके पास एक क्लोरीन, एंड here we have OH। ठीक है, तो एक बात बताएं, from here you can see that this is my functional group, correct है guys? है ना? On, this is C double bond O, which will be ONE, right? अरे बोलो भाई। Yes, sir. और आपके पास all of the other things, this Cl is also a substituent, OH भी substituent है, but OH के बारे में आप जानते हैं that OH is from list of functional group, correct है? है ना? बोलो, इट इज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यस और नो? और क्लोरीन जो है इट इज नॉट। तो हम क्या कहते हैं, आई एम सेइंग दैट कि एक तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं, एक आपके पास फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और दूसरे अदर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम लिस्ट ऑफ functional group, ठीक है। Now from the list of functional group I will write the structure,
एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव COOH, और क्या था हमारे पास, SO3H था। What else did we have? We had COOR, right? All of these are what? All of these are from the list of functional group, है ना? And अच्छा, COR के example में I will write. You may have COOCH3 हो सकता है. You can have what? COCH3 तो आपको समझ में आ जाएगा. C2H5 हम कर देते हैं. ठीक है. So let us suppose carboxylic acid is acting as a substituent, not as a functional group. Then the name of carboxylic acid, as if it is acting as substituent, then it is carboxy. अगर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा तो क्या नाम है इसका? If it is acting like a functional group, then what is the name of COOH? बोलो भाई, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो क्या नाम होगा? अरे बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है ऋषिता। ओइक एसिड होगा ना, ये यार बोलते नहीं है बच्चे, ओइक एसिड। बट इफ इट इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट, देन इट विल बी कार्बोक्सी। SO3H का सल्फो। COOR का क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। Alkoxy carbonyl. Now this carbonyl is going to be the same. Alkoxy is going to change. For example, if you have ethoxy, please देखें यहाँ पे, don't write now. Please don't write. Here we are having 2 carbon atoms now. तो 2 carbon atom के लिए eth, oxy, and carbonyl will be same. If we had only 1 carbon atom, it will be meth, oxy, carbonyl will be still there. Then we have CONH2. CONH2 इसको बोलते हैं हम लोग कार्बाअमोइल। Carbamoyl. After CONH2, we have CN. CN is known as cyano. Cyano. Then we have CHO. This is known as oxo. Oxo मतलब लिखिए, formyl लिखिए. Formyl is better. Formyl. After CHO, we have ketonic group, that is CO. This is written as oxo. CO के बाद आता है OH, which is hydroxy. And then we have NH2, which is amino. Chलिए, please write this down. Raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done, okay?
These are from the list of functional group. अब उसके बाद लिखिए others. Others में क्या है आपके पास? Please see here. Others में बहुत गिने चुने हैं. We have F, which is known as fluoro. Then we have Cl, which is known as chloro. We have Br, which is known as bromo. We have iodine, which is known as iodo. ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गए, जनरली हालो हो गया, राइट? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. Then we have another which is individual, that is NO2. Now this is a substituent. This can never be a functional group. This can never be a functional group. NO2, which is known as nitro. उसके बाद आता है आपके पास OR. OR. इन जनरल इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी. तो ऑक्सी तो हमेशा रहेगा, the alk is going to change. For example, instead of OR, if I have OCH3, तो इसको बोलेंगे methoxy. alk की जगह क्या आ गया? meth आ गया, methoxy. If I have, let us suppose, OC2H5, then it will be, अब O तो methoxy तो रहेगा, but it will be ethoxy because of 2 carbon atoms. Is this clear, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए छापिए इसको फिर. रेज योर हैंड वंस डन. लिखिए आप लोगों ने. ठीक है, अच्छा ठीक है. आई थिंक एवरीवन हैज रिटन. राइट टू रिमार्क्स. इसको मेरे साथ ही लिख लीजिए आप लोग. If more than one type of substituent is present in the name, in the molecule कर दीजिए, in the molecule, then they will be written alphabetically. No. समझ में आ गया ना? क्लोरो है, ब्रोमो है, नाइट्रो है, 3 है आपके पास. क्या है? You have क्लोरो, ब्रोमो as well as नाइट्रो. ठीक है, तो व्हेन यू आर राइटिंग द नेम, सबसे पहले किसको रखेंगे हम? ब्रोमो को, फिर रखेंगे क्लोरो को, उसके बाद रखेंगे नाइट्रो को. ठीक है, जब एग्जांपल आएगा आपको समझ में आ जाएगा, बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस at least. We'll write if more than one substituent of same type is present, then we add di, tri, tetra, etc. to the name of substituent. है ना? तो अगर आपके पास 2 Cl आ गया तो डाई क्लोरो, 2 Br आ गया तो डाई ब्रोमो, वगैरह वगैरह. ठीक है,
अब एक आप लोग को हल्का सवाल दे रहे हैं हम। आइडेंटिफाई दी सब्स्टिट्यूएंट इन फॉलोइंग। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सब आइडेंटिफाई करना है? यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, बट ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप वगैरह अनसैचुरेशन आपने आइडेंटिफाई कर लिया मान लीजिए, उसके बाद ही सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा सब्स्टिट्यूएंट आप लोग करने लगे। ठीक है, प्लीज आपको दिमाग में एटलीस्ट व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसमें से कुछ सवाल कर देंगे, 3 सवाल करते हैं, उसके भीतर आप उसके बाद हम देंगे, नहीं तो मेरा ही दिमाग खराब होगा। ध्यान से देखिए। चलिए, लेट मी टेल यू अबाउट द फर्स्ट वन। ध्यान से देखिए। सो इन दिस वी डोंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव एनी अनसैचुरेशन, सो आई विल जस्ट चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नाउ आफ्टर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आई गॉट दिस इज अ, वी हैव टू सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है ना? सो व्हाट आर दीस सब्स्टिट्यूएंट? टेल मी गाइस, दोनों क्या है? बोथ ऑफ देम आर व्हाट? लाउडली, अगर रिश्ता आप बोलेंगे यू विल स्पीक लाउडली। Alkyl substituents. अल्काइल है, तो अल्काइल में कौन सा है? Ethyl. मिथाइल, राइट? और कितने मिथाइल है? वी हैव 2 मिथाइल्स, राइट? ठीक है, वी हैव 2 मिथाइल, या फिर 2 मिथाइल की जगह मैसेज लिख दे, वी हैव 2 CH3s। तो 2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? डाई, और CH3 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? मिथाइल। गॉट इट? यस और नो, प्लीज टेल मी। अरे बोलो भाई। Yes, लिखना sir. नहीं है अभी, लिखना नहीं है यार श्वेता, अभी आप लिख रहे हो तो प्लीज पेन वेन छोड़ दो, अभी लिखना नहीं है। आप लोग लिखने के लिए मरे रहते हैं। चलिए सेकंड नंबर वाले में बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूएंट? सोच के बताएं। NH2. हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए, OH जो है ना वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, इट विल बी व्हाट? इट विल बी अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? हाँ वेरी गुड, यू शुड प्लीज इसको याद रखें, ऐसा नहीं कि अभी सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा है तो सब्स्टिट्यूएंट ही सबको करने लगे। याद रखें दैट OH इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड ये दिस इज योर पेरेंट चेन, whatever is remaining, what is remaining now? NH2 is remaining, so NH2 क्या होता है? NH2 is amino, amino is the functional group। got it? yes or no, please tell me। ठीक है, अब यहाँ पे बताएं आपके पास, try in this one, tell me क्या क्या है। अच्छा ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है। इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट इन द फर्स्ट कार्बन? इज देयर No. एनीथिंग नहीं। सेकंड कार्बन में Yes. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट? टेल मी। Chlorine. क्लोर। आमना आपको समझ में आ रहा है? माइक ऑन करके बोले जित, देखिए इफ यू वांट टू लर्न गाइस, जिसको पढ़ना है, जिसको समझना है चीजें, वो प्लीज आंसर करें। ठीक है ना? व्हाट अबाउट द थर्ड कार्बन? इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट? Cl. Cl। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? NO2. NO2। व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? No. हाँ मिथाइल। Methyl. Yes, sir. देखो, दिस विल बी योर कार्बन चेन ना। हाँ अभी आप लोगों को थोड़ा नहीं दिखा होगा, कोई बात, ऐसी बात नहीं। आप लोग जब भी नाम लिखेंगे, whenever you are going to write the name, then you will write the functional group, unsaturation, parent, then whatever is remaining as substituent, तो वहां पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे, राइट? once you have done the parent chain। ठीक है, तो अब आपके पास what do you have? You have 2Cl। 2Cl के लिए क्या लिखते हैं? डाइक्लोरो। then we have what? We have NO2। NO2 के लिए क्या लिखते हैं? नाइट्रो। Nitro. then we have CH3। CH3 के लिए क्या लिखते हैं? मिथाइल। बात आई समझ में? Yeah. बोले गई? Yes, आ sir. गया ना? ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा, और हम एक सवाल दे रहे हैं आप लोग को, थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा प्लीज, है ना?
You didn't even send it to me. रशिता आपने भेजा है? यार रशिता, OH है ना यार, देखो भाई कैसे चलेगा, इतनी ऐसी गलती होगी तो फिर। नहीं आया समझ में? हाँ रशिता, OH is oxo, right? अरे यार देखो ना, आप लिस्ट में देखो भाई, आपने लिखा तो होगा ना, देख के करें आप। Hydroxy. यार रशिता देखो, हम प्लीज बोलेंगे, गलती अगर आप करेंगे ना, ये दिमाग में बैठ जाएगा ऑक्सो, ठीक है? व्हाट अबाउट अदर गाइस? आमना वगैरह भेजे भाई, आंसर भेजिए, इतना टाइम लगना चाहिए। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। आमना डन, आमना खदीजा किसी का हुआ? Done, sir. सॉरी, Done, अच्छा sir. अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड आमना। आमना आई थिंक आपने अच्छी मेहनत की है, वेरी गुड। आपने लेक्चर्स देखे पुराने? Yes, sir. हाँ, और उससे हो गया Tuesday ना क्लियर? जी हाँ, उससे हो गया क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सी हियर गाइस, दिस इज योर ओन, एंड देन दिस विल बी योर पेरेंट कार्बन चेन। और आपके पास क्या बच गया? यू हैव OH, you have OH, and then you have Br, so you have 2 OH. So for 2 we are going to write di, for OH we are going to write hydroxy, for Br we are going to write bromo। ठीक है, that's it, इतना ही है। अब सुनिए, Br के लिए ब्रोमो हो गया। अब आखिरी चीज जो हमारी बची है, दैट इज नंबरिंग। क्या बचा हुआ है? नंबरिंग बची हुई है। नंबरिंग बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। कैन आई मूव ऑन? हाँ या ना, बोले भाई? yes, ठीक है, sir. आई थिंक सबने कर लिया। राइट, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, numbering of नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, इसमें लिखेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, numbering of parent chain starts from that terminal carbon which is nearest to नंबर 1। आपको प्रायोरिटी देनी है किसको? फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप से नियरेस्ट जो टर्मिनल होगा, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप ही टर्मिनल है, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ, है ना? वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड इज द अनसैचुरेशन, को आप प्रेफरेंस देगी अनसैचुरेशन, ठीक है? सो वेर एवर द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नियर, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। थर्ड में लिखेगा सब्स्टिट्यूएंट। If you don't have functional group and unsaturation, then you will give priority to substituent, जहां पे substituent नजदीक में है वहां से आप करेंगे। Now, if you get a tie somewhere, ठीक है ना, if you're getting a tie between the substituent, अगर substituent के बाद भी आपको क्या आ गया, tie आ चुका है, then you will number according to the alphabetical order, according to the alphabetical order. Write this down.
Done everyone? लिख लिया आप लोगों ने? Anyone still writing? नहीं ना, ठीक है, ध्यान दे। See your guys. देखिए इधर देखिए, अरे भाई देखो इधर देखो, प्लीज देखो यार, प्लीज देखो। See here. If I have something like this, आपके पास यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। अब बताइए, देखिए देयर इज, सी हियर गाइस, आपके पास सिर्फ दो ही तरीके नंबर करने के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। या तो ये नंबरिंग होगी, और द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 एंड 5, है ना? सही है। कीप योर माइक ऑन एंड टेल मी इन द चैट, आप लोग बताएंगे, चैट में बताइए विच वन इज द करेक्ट नंबरिंग, 1 और 2 अकॉर्डिंग टू दी हमारे पास जो लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया है ना, उसके हिसाब से 1 और 2 आप लोग अभी बताएं इन द चैट प्लीज, 1 और 2 विच इज करेक्ट, 1 और 2, सॉरी रेड और ग्रीन, माय बैड, 1 और 2 कैसे बताइएगा आप लोग, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, पिंक और ग्रीन, रेड और ग्रीन, जो भी नजर आ रहा है आपको, द बिलो वन इज ग्रीन और ऊपर वाला पिंक रेड आप लोग को जो नजर आए। ओके आमना, ठीक है। ऋषिता, एक और आंसर आ जाए, कैन समबडी प्लीज आंसर समथिंग, आई डोंट नो भी आंसर चलेगा हमको, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने क्योंकि समझाना स्टार्ट नहीं किया है अभी, तो आपने इस लिखे हुए चीज से जो समझा है आप उसके हिसाब से आंसर कर रहे हैं। इफ यू डोंट नो देन आल्सो फाइन, आई विल वेट फॉर 5 मोर सेकंड। 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। बोथ ऑफ यू गाइस आर करेक्ट, आमना एंड रिश्ता, दैट रेड वन इज करेक्ट, बिकॉज हमारे पास ना तो फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, ना ही हमारे पास वी हैव एनी अनसैचुरेशन, नॉर, बट या आफ्टर अनसैचुरेशन वी हैव सब्स्टिट्यूएंट, सो वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट, सो वी आर गोइंग टू डिसाइड विद रिस्पेक्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट है? चलिए ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गिव द लीस्ट नंबर, इट शुड स्टार्ट, देखिए दो टर्मिनल कार्बन से हमारे पास, वी हैव दिस टर्मिनल कार्बन एंड दिस टर्मिनल कार्बन इन द पेरेंट चेन, सो ए और बी में से वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल व्हिच इज नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट। सो बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ गया, आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ मोर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं अगला केस। ओह माय बैड, इसको मिटाना नहीं चाहिए था। हाँ जी बताएं। Anyways, we're gonna get 5 in total. नहीं, इन टोटल की बात ही नहीं है, अगर हम नाम में देंगे ना 2 क्लोरो या 4 क्लोरो, है ना खदीजा, है ना 2 क्लोरो या 4 क्लोरो होगा तो 2 क्लोरो होगा, दैट विल बी मोर करेक्ट, ठीक है, गॉट इट, ओके। अच्छा सेम चीज है बस, अब आप बताएं यहाँ पे, अब आप बताएं यहाँ पे, अगर सी एवरीथिंग इज सेम बट चेंज देख रहे हो आप क्या है, आपने बी आर लगा दिया यहाँ, ठीक है। अब बताएं व्हाट विल बी द करेक्ट नेम, सॉरी नंबरिंग क्या सही होगी, रेड वाली या ग्रीन वाली, सोच के बताइएगा। सब्स्टिट्यूएंट को अगर आप देखें, इफ यू आर गोइंग टू बैड, सेकंड, एक सेकंड, if you are going to look at the substituent, if you are going to look at the substituent, then substituent आपके पास अगर आप ग्रीन कार्बन को देखें तो 2 में आ रहा है एंड 4 में आ रहा है, करेक्ट है, हाँ या ना? ग्रीन वाले से 2 और 4 में आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, हाँ या ना? हाँ, हाँ, और रेड वाले से 2 2 और 4, 2 एंड 4। ऋषिता आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऋषिता को समझ में नहीं आ रहा है ना ऋषिता? जोर आप ना यार, आपकी ना आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा सा कुछ माइक वाइक लगाओ यार, हमको धीमे, हम काम मेरा खराब हो जाएगा। 1 second. अच्छा हाँ, आई कैन वेट, नो प्रॉब्लम। So can you hear me now properly? अरे हाँ, दिस इज मच बेटर। आपने अब किस डिवाइस से ज्वाइन किया है, फोन से?
No, iPad से। ये बहुत सही है, अभी आवाज आ रही है। आप आई थिंक पहले आईपैड से ही ज्वाइन करते थे, है ना? हाँ सर। हाँ, ये अभी ठीक आ रही है आवाज, पहले तो बहुत कम आ रही थी। अच्छा, बट यू कैन नॉट टर्न द कैमरा ऑन नाउ। I still can, sir, but I have to keep it in a वियर्ड पोजीशन, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम, आई Yeah. एम, ठीक है, फाइन। आपकी आवाज है तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इफ आई एम इन द रेड सॉरी इन द रेड नंबरिंग, क्लोरीन कौन से नंबर कार्बन पे आएगा रेड नंबरिंग में? 2, 2। और बी आर 4, 4, ठीक है। अच्छा, ग्रीन वाले में 4 and 2. 4 and 2. 4 and 2, है ना? अच्छा, क्लोरीन एंड बी आर बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट ना, वो दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ही है। क्लोरीन और बीआर में तो हम दोनों में से कोई फर्क नहीं कर सकते ना, कि नहीं ब्रोमीन को ज्यादा प्रायोरिटी दो, नहीं क्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी दो, इन द सेंस कि वो नंबरिंग पहले आना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू क्लोज दैट गैप, आपको ये समझ में आ रहा है ना कि बोथ दी नंबर, अगर हमारे पास, इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, देन माय सब्स्टिट्यूएंट इन बोथ द नंबरिंग, माय सब्स्टिट्यूएंट इन बोथ द नंबरिंग आर इन सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे वी कैन नॉट सेट एनी प्रायोरिटी। बात समझ में आ रही है? अब तो टाई हो गया, करेक्ट है? Yes. नहीं आया, करेक्ट है ना रिश्ता? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब समझिए इस बात को कि दोनों के दोनों कहां पे है, यहाँ पे आपके पास टाई हो चुका है कि आपको देना है सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए था, सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए था, बट हियर बोथ, दोनों नंबरिंग ले लो, दोनों में तो सेम आ रहा है, तो क्या दोनों चूज कर सकते हैं? नहीं। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अगर सब्स्टिट्यूएंट में हमारे पास टाई हो गया, देन वी विल सी कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है। We are going to see what is the name of substituent. So what is the name of this substituent? It is bromo. What is the name of this substituent? It is क्लोरो। अब बताइए किसको प्रेफरेंस दें, ब्रोमो को या क्लोरो को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे? Bromo. ब्रोमो, तो ब्रोमो को मिलेगा लीस्ट नंबर, है ना? अब ऐसे पढ़ेंगे, हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या आ गया? ब्रोमो आया। Then we will numbering of parent chain start from that terminal carbon which is nearest to bromo. बात समझ में आई कैसे बोलना है? In order to make yourself understand. तो अब बताइए कौन सा नंबरिंग सही है, ग्रीन या रेड? Which is correct? क्या सही है? ग्रीन सही है, Green. है ना? अब देखो, ठीक है, कुछ चेंज, मतलब सिर्फ आप देखो चीजें अलग अलग बस लगते जा रही हैं, अदरवाइज आपका पेरेंट कार्बन चेंज नहीं हो रहा है। पेरेंट कार्बन चेन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना? अच्छा, चलिए अब हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। नाउ टेल मी, अब बताइए, ये डबल बॉन्ड हमने अगर लगा दिया यहाँ पे, एंड दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन एटम था यहाँ पे। अब बताइए, अब रेड सही है या ग्रीन सही है? अब हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? हाँ, रेड सही है। क्या सबको दिखा? जैसे आमना, ईजान, खदीजा, जो लोग हैं भाई, पता नहीं कौन कौन है, जो भी है, रिशिता, खदीजा जो है, आमना है, कैसलमी, आमना, रिशिता एंड खदीजा। आमना एंड खदीजा समझ में आई बात आपको? वाई वन, Yes, sir. वाई द रेड वन? खदीजा, खदीजा को नहीं आया। खदीजा बोले प्लीज, जल्दी बोल दिया करें, नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, आया नहीं आया? क्या यार, माइक ऑन रखो भाई, यार माइक ऑन रखने में इतनी परेशानी हो रही है तुम लोगों को। हाँ, आया या नहीं आया? हाँ ठीक है, तो रुको ना भाई, तो रुको, माइक ऑन करके रुको। अब बताओ, पढ़े आप यहाँ पे, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन स्टार्ट फ्रॉम, बोले, हाँ खदीजा बोलिए। Numbering of parent chain starts from that terminal carbon which is nearest to functional नियरेस्ट टू, हाँ, एक सेकंड, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है हमारे यहाँ पे? एक सेकंड से, हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, नहीं है ना? नहीं है। नहीं है, पक्का ना? हाँ, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप से तो कुछ डिसाइड होने से रहा, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। अब अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या देखेंगे? फिर से स्टार्ट करें नंबरिंग। अब फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल व्हिच इज नियरेस्ट टू अनसैचुरेशन। क्या अनसैचुरेशन है? हाँ है। तो कहां से स्टार्ट करें हम? अनसैचुरेशन की तरफ से। हाँ, हाँ, तो अब रेड समझ में आया अब आपको? हाँ, मतलब देखिए, वो थोड़ा सा नजरिया देखने का अलग है, बट चीजें लिखी हुई हैं आपकी नोट्स में, ये सुनो खदीजा, यस सर। ठीक है, तो उसको ना, मतलब उसको यूज करना अब आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू यूज इट। या फंक्शन ग्रुप खत्म हो गया तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा,
लेकिन एक बात है कि आपको यहाँ पे चीजें ना आपको काम करने का मौका मिलेगा, इन द सेंस दैट यू विल गेट टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स IUPAC नॉमेनक्लेचर में। अगर आपके स्कूल में स्टार्ट हुआ होगा तो आपको कितनी चीजें रटनी पड़ रही होंगी वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ना हर छोटी चीज के लिए हमने इसको ऐसा बनाया है कि आप उसमें काम कर सके, आप पढ़ें आप उस रूल को अप्लाई कर सके, आप पढ़ें आप उस रूल को अप्लाई कर सके, ठीक है। सो एक ही सवाल के अंदर ना यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे रेड हो गया, मतलब कैसे हम लोग डांस कर रहे हैं ना, ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब देखिए देखिए एक ही एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीज समझ में आएंगी, इंपॉर्टेंस की आपके पास इसका क्या है। अब समझ लीजिए, मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पे, लेट अस सपोज आई हैव OH ग्रुप। यहाँ पे क्या है, यहाँ वी हैव अ OH ग्रुप, ठीक है। अब बताइए विच वन इज सही, रेड वाला या ग्रीन वाला। अब ग्रीन। बिल्कुल, किसी को कोई भी डाउट है तो बताएंगे, नो डाउट ना। खदीजा आपको समझ में आया है ना, चलिए ठीक है। तो अब इस केस के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर केस यू विल राइट द IUPAC नेम, हाँ ना, यू विल नॉट हिट, आई विल राइट द IUPAC नेम, है ना, स्टार्टिंग से लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग प्लीज कीप योर माइक ऑन, आमना खदीजा रशिदा यू गाइस आर आंसरिंग, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन दिस पर्टिकुलर कार्बन चेन, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या है, OH है, वेरी गुड। सो OH हैज, क्या नाम होता है इसका, OH का OL। OL. all, very good. And then what is the unsaturation, डबल बॉन्ड। EN. double bond, yeah, very good, double bond को बोलते हैं हम EN। then what do we have, parent, ठीक है ना। तो पेरेंट में टर्मिनल कार्बन चूज कर लेते हैं, राइट, दिस इज माय टर्मिनल एंड ये एक टर्मिनल है आपके पास, ठीक है। ये टर्मिनल नहीं है, फिर से हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, बार बार गलती नहीं करेंगे, ओके। सो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, and this is my terminal carbon, this is my terminal carbon, so I will start from here, obviously because parent है यहाँ पे, sorry, we have the functional group को लेना रहता है, so 1 2 3 4 और unsaturation को भी लेना रहेगा। now you will number it, अब यहीं पे हम नंबर कर देंगे because we know how to number it, right, because we have got the functional group। I will number it 1 2 3 4 and 5, got it, yes or no, please tell me। यस सर। so 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, this will be Pen. पेंट, वेरी गुड। अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट की तरफ, किसकी तरफ आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। सब्स्टिट्यूएंट में हमारे पास क्या क्या है, वी हैव अ ब्रोमो एंड वी हैव अ क्लोरो, सही है, Chloro. यस। ठीक है। आपके पास क्या है, वी हैव अ क्लोरो एंड वी हैव अ ब्रोमो, ठीक है। हम देखिए ब्रोमो को लास्ट में लिखा है ताकि जब हम नाम लिखे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा कैसे, वी हैव क्लोरो एंड वी हैव ब्रोमो। नाउ ब्रोमो इज इन विच कार्बन एटम, देखिए ब्रोमो कौन से कार्बन में बताएं, Second. सेकंड कार्बन। सेकेंड, तो 2 डैश ब्रोमो। फिर क्लोरो कौन से कार्बन में है, Fourth. फोर्थ, वेरी गुड, 4 क्लोरो। पेरेंट कार्बन चेन पर नंबरिंग की जाती है, उसका कोई नंबर नहीं होता है ना, समझ में आई। पेरेंट की तो नंबरिंग की गई है, तो है ना, तो वो किसी कार्बन एटम पे नहीं, वो वही चेन है जिसपे सारी चीजें लगी हुई है ना। डबल बॉन्ड में देखिए आप, इफ यू सी द डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में, करेक्ट है गाइस, सुनो प्लीज टेल मी। यस। Yes, sir. तो 4 वाला लेंगे या 5 वाला लेंगे, तो उसके लिए IUPAC ने कहा जो कम नंबर है उसको लेंगे, है ना। अगर आपके पास इफ द कार्बन बॉन्ड ऐसे करके, इफ दिस इज बिटवीन 5 and 6 कार्बन, तो कौन सा लेंगे, आई विल नंबर इट एज 5En। अगर आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में, तो आई विल नंबर इट 1En। बात समझ में आ रही है, यस सर। है ना, Yes, sir. लोअर नंबर लेंगे, ठीक है, लोअर, ये थोड़ी चीज याद करनी पड़ेगी आपको। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 4En, करेक्ट है। यस। Yes, sir. Now it will be and OH is in the first carbon, तो फर्स्ट के लिए ना IUPAC बोलता है कि आप 1 और लिख भी सकते हो, नहीं भी, अगर आप नहीं लिखोगे, if you will not write the number of functional group, unsaturation या फिर substituent, इनमें से किसी का अगर आपने नंबर नहीं लिखा है, then we will assume that their number is 1। हम उसको क्या assume कर लेंगे, उसका नंबर क्या है, वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। तो 1 में आपको ऑप्शंस होते हैं, बट अब देखिए कितना ही आसान हो चुका है, आपको बस ऐसे लिखते जाना है। We identify in this order, है ना, functional group, unsaturation, parent, substituent, and we write the name in this order। ये चीज हमने सबसे पहली बार क्लास में कराई थी और आज इसका बिल्कुल एंड आ चुका है ना। तो we will start from here। देखिए कितना आसान नाम हो गया आपका, 2 ब्रोमो dash 2 क्लो, सॉरी 4 क्लोरो, my bad, 4 क्लोरो पेंट
4 in 1 all. इज दिस क्लियर? देखिए कितना बड़ा नाम है, अगर आप इसको एक बार में लिखने जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे ना। अगर आप चाहेंगे कि आपको एक बार में एट अ टाइम ही आपको ये नाम आ जाए कंपाउंड देखते हुए, तो ये आने से रहा कभी भी, है ना। सो दैट इज वाई यू हैव टू फ्रैगमेंट, you have to compartmentalize whatever is given. Functional group, unsaturation, parent and substituent. Awesome. Tell me guys. कोई दिक्कत होगी? Sir, हाँ for जी the बताएं. double, when IUPAC said if it's double bond, does it also apply for triple bond? हाँ, same thing for triple bond also. Okay. Same, मतलब for unsaturation is the unsaturation में जो नंबर लोअर नंबर है कार्बन वही आपको लिखा रहता है, ठीक है. Yes, sir. इसको लिख लीजिए प्लीज. Are you guys done? Yes, sir. ठीक है. करेंगे क्या एक दो सवाल या कुछ और हम प्रैक्टिस करा दें? चलिए एक सवाल आपको करके देखिए, ठीक है. वैसे देखिए इतना ऐसा सवाल ना जनरली आपको नहीं मिलेगा, आपकी किताब में कुछ सवाल हैं, वो हम सवाल कराते हैं आपको, आप ये करके देखिए. देयर इज अ क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक लाइक दिस. बस अभी हम लोगों ने बेंजीन वाला नहीं सीखा, अदरवाइज वी आर ऑलमोस्ट डन. ठीक है. नंबरिंग वगैरह में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्लीज, है ना, ऐसे उटपटांग सी नंबरिंग ना कर दें आप लोग. ठीक है. कार्बन एटम्स को ध्यान से काउंट करेंगे, टर्मिनल कार्बन कौन सा नहीं है उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है. इन्हीं सब चीजों में मिस्टेक हो सकती है, उसके अलावा कुछ मिस्टेक के चांसेस बचते नहीं है यहाँ. चलिए ठीक है, ट्राई दिस. यार हम 3 मिनट देंगे आप लोगों को, 3 मिनट से ज्यादा क्या ही लगना चाहिए इसमें, है ना. फंक्शनल ग्रुप भी ध्यान से देखिएगा बिल्कुल. सी डबल बॉन्ड वो है तो अगल बगल देखना रहता है, सारी चीजें ध्यान रखिए, ठीक है ना, हड़बड़ाइएगा नहीं. तो रिमेंबर ईच एंड एवरी रूल. फंक्शनल ग्रुप देखना, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज गो बैक टू द फंक्शनल ग्रुप in your notes and then do it
Okay. Guys, please send the answer. क्या हुआ रक्षिता? आमना, खदीजा नहीं हो रहा क्या? नहीं यार, व्हेन आई आस्क्ड तब डन ना, Answer. भेजे कर। ओके ओके। Yes. आमना एंड खदीजा बताएं व्हाट्स द अपडेट। हाँ ठीक है चलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे रक्षिता, बट हाँ ठीक है चलेगा। ओके, वो जो भी आपके अंदर मतलब नाम में मिस्टेक्स है वो इस वजह से हमने चीजें को नहीं बताई हैं अभी उन चीजों को, ठीक है। हम लिखा देंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा अपन, डोंट वरी। अरे नहीं यार खदीजा, आपको ना देखना पड़ेगा दोबारा से। आप जो गलतियां कर रहे हैं वो बहुत बेसिक गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अब तो, है ना। अगर आप रेगुलर हैं क्लासेस में तो आपके साथ ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आम ना भेज रहे हैं आप? 2 minutes sir. 2 मिनट्स? यार 2 मिनट बहुत ज्यादा है ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एक सवाल में। आमना बताएं फिर आप, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप आमना? आमना व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? own नहीं, फंस गया आप लोग। यार ये पढ़ो भाई, सी डबल बॉन्ड हो देखा आपने? आमना एंड खदीजा, both of you guys saw C double bond हो? ये सुन, अरे यार प्लीज माइक ऑन। खदीजा, खदीजा, हाँ वंस यू हैव सीन द डबल बॉन्ड O तो फिर राइट और लेफ्ट देखते हैं या नहीं देखते हैं? yes sir. बोलो भाई। सो व्हाट इज इन द राइट साइड? हाइड्रोजन है आपके पास, जी तो क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप बताइए? फर्स्ट क्लास जाके देखो फंक्शनल ग्रुप वाला, राइट या लेफ्ट में। हाँ OH कहां से हो जाएगा? AL होगा भाई। आप थे खदीजा फर्स्ट क्लास में, फंक्शनल ग्रुप वाले क्लास में? सॉरी, I was there. तो फिर आपने नोट्स नहीं बनाया है क्या? तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिखाया हुआ है? कंफ्यूजन क्यों होगा यार? इफ यू सी C डबल बॉन्ड O इन अ मॉलिक्यूल देन चेक लेफ्ट एंड राइट। अगर OH हुआ तो ओइक एसिड, अगर OR हुआ तो OH हुआ, तो हाइड्रोजन हुआ तो AL। प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन क्यों रहेगा? नाउ वी हैव, देखिए अब ये सारा पार्ट आपने, एक तो आपने यहाँ पे भी क्या क्या कर दिया है खदीजा, इसको भी आपने कार्बन एटम लिया है, ये सुनो। क्यों कार्बन एटम होगा यार? आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो आप लोग। अनसैचुरेशन विल बी AN। अब पेरेंट की जब बात आएगी, अब पेरेंट भी आपने उल्टा चूज किया हुआ, पता नहीं क्यों। जब हमने बोला हुआ है पेरेंट को जब चूज करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, है ना। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल कार्बन व्हिच इज नियर टू द फंक्शनल ग्रुप। अब आप भले ही आपने इसको ले लिया भाई, कार्बन एटम इसको ले लिया हो, और दूसरा तो ये है। अब A और B में बताओ, हम गलत ले रहे हैं खदीजा आपके लिए, है ना। आपने गलती में भी क्या गलती की वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। A एंड B विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, टेल मी। तो फिर आपने A क्यों लिया हुआ है वहां से?
अब चीजें पता होने के बाद आप गलती कर रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान से, मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे हम, क्या हम क्यों ही बोले आप ध्यान से नहीं कर रहे हो, तो ध्यान से कर रहे होंगे आप, लेकिन पता या आप लापरवाही कर रहे हैं बस, है ना। आपको जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए थे वो स्टेप्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो। सो द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन इज व्हाट, इट इज prop. Now, is there anything remaining? Yes, there is something remaining. What is remaining? Cl is remaining. So क्या हो जाएगा? Substituent is going to be Cl, which is going to be chloro. और जब हम now सी देखिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी नंबरिंग होगी, अनसैचुरेशन कुछ नहीं है तो उसकी नंबरिंग नहीं होगी। ठीक है, क्लोरो हमारे पास सब्स्टिट्यूट है तो इसकी नंबरिंग होगी। सो वी हैव क्लोरीन द थर्ड कार्बन एटम, तो इसको लिखेंगे इस तरह से 3 क्लोरो प्रोपेन 1 अल। ठीक है, 1 अल। नाउ एक दो पॉइंट लिख लीजिए आप, numbers and letters are separated by numbers and letters are separated by dash। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, numbers and numbers are separated by comma। नंबर्स और नंबर्स का कब आएगा काम वो हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, लेटर्स आर नॉट सेपरेटेड। लेटर्स अगर है आपके पास, जैसे प्रॉप है आपके पास, फिर ए एन है ना, इनको सेपरेट नहीं करना, दे आर रोटेटेड टुगेदर। लेटर्स आर रिटन टुगेदर। ठीक है ऋषिता, आपका बस इसी में मिस्टेक था जो हमें अभी नहीं बताया था, है ना। बाकी सब तो सही था ऋषिता, आपका प्रॉप वगैरह सही था ना आपका। हाँ ठीक है, हाँ बाकी सब ठीक था आपका। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट आपको, नंबर्स एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा का क्या मतलब वो हम बता देते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव समथिंग लाइक दिस, you have OH here as well as you have OH here। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में क्या लिखना पड़ेगा आपको, यू विल राइट डाइऑल, अनसैचुरेशन इज गोइंग टू बी AN, द पेरेंट इज गोइंग टू बी 1 2। अब देखिए कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी सेम, राइट। यहाँ से राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4। पेरेंट कार्बन इज ब्यूट, parent carbon is but, right? And here you don't have any, here you are not going to have any substituent, कोई substituent है नहीं यहाँ पे, because we have already identified each and everything। तो आपके बाद कुछ और बचा नहीं हमारे पास। Now we are going to number, so parent को तो नंबर नहीं करते, unsaturation कुछ है नहीं, so we will not number, but functional group we have diol। So now where is the oxygen atom? So 1 2 3 4, so it is present in the second and third carbon atom, 2,3 लिखेंगे हम। ठीक है, now the name is going to be butane 1,2 diol। See, letter and number separated by dash, number and number separated by comma, number and letter separated by dash। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत क्या? So हाँ जी बताएं। why can't we take it in the other order? What order? 2,1। Like अरे भाई 1 2 3 my bad, wait मेरा 1 2 3 मेरी गलती, my bad, डेजी। ठीक है, 2,3 होगा भाई, मेरी गलती, 1,2 ले लिया हमने, 2,3 होगा। ओके, हाँ आप बताइए ऋषिता, अभी कोई दिक्कत? No, sir. नहीं, हाँ ठीक है थैंक यू। वो हमने जल्दी जल्दी में 1,2 ले लिया। ठीक है, इट विल बी 2,3। ठीक है, इट इज ओनली व्हेन यू आर हैविंग सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उसको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें और थोड़ा सा डिटेल्स ऐड करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा फिर। ठीक है, असेसमेंट जो होना है उसके बाद होगा। Sir, I was about to ask, what if like we like change the order instead What of order? 1 2 3 4 from instead of 1 2 3 4 from left to right, what if we write from right to left? अच्छा ये पूछ लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। I 1 thought it 2 was the same. 3 4, हाँ नहीं देखिए कोई बात नहीं, करके देख लीजिए, अभी भी 2,3 रहेगा। Yes, sir. हाँ Okay, so we'll get the same numbers. जी।
Okay, sir.